moving forward, all organisms are made of cells or aggregate of cells. Okay, all organisms are made up of cells or aggregates of cells. So this says, now we are starting the summary of the chapter Cell, the Unit of Life. Okay, so every organism, whether it is a single cell animal or a plant, okay, their body is made up of a single cell, and in the case of multicellular, there is an aggregate of cells. So cell vary in their shape, size, and activities, and also their functions. So you can see the shape of different cells. You can see the shape of nerves cells. It is like this, right? They're having the dendrites to capture the signals, right? And one of the dendrites become too long and more conspicuous, that is called as axon. And you can see here they are having the endings also, right? This is the cyton part. So it's a very special type of cell you can see. Now why they are so modified in this form? Because they have to capture the signals and they have to transfer the signal to the next cell. So that is why they are quite long and they are having such a shape. Now if you talk about a amoeba cell, no shape it is having, because it has to move in the water and capture its food material. And the capturing of food material, if it is having a fixed shape, then it won't be possible, right? In the case of amoeba. So every time it is moving here and there to just capture the food material. So that is why they are having this pseudopodia like structure. Okay. Now if you see a Chlamydomonas is having this flagellated. So this helps in the locomotion. Volvox, a colony of this Chlamydomonas like cells like this, and it is having a ball which is having lots of flagella that helps in the locomotion, right? So you can see here that they are having the different shapes and sizes, okay, just because they are having to perform different activities and function, and according to that their shapes and sizes are different and different. So based on the presence or absence of the membrane bound nucleus and other organelles, cells, hence organisms can be named as eukaryote and prokaryote. So this is the basic difference of the two different types of cells. All the cells, there are two different types of cells. If you see all the cells, eukaryotic and prokaryotic. As its name suggests, prokaryote, pro means primitive type and karyote means nucleus, primitive type of nucleus. Nucleus in the case of prokaryotic cells are not having any membrane bound nucleus. The content of the nucleus, that is the chromosome, it is circular DNA and it is present in the cytoplasm only, and that is called as nucleoid. No membrane bound organelles are there. Okay, so this is a prokaryotic cell. What about the eukaryotic cell? A proper membrane bound nucleus. Here you can see in the case of amoeba, here you can see in the case of nerve cells, in the case of Chlamydomonas, right? So all these are eukaryotic cells, and they are having the specific membrane bound organelles as well in their cytoplasm. So that is the eukaryotic cell. ठीक है? So सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? या तो वो सिंगल सेल से बने होंगे या फिर एग्रीगेट्स ऑफ सेल से बने होंगे, जिनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि जो है प्रोरीफेरा जो है वो जो है वहां पर सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है, दो वो मल्टी सेलुलर है, वहां पर अभी किसी तरह की टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ है ना. तो इस तरीके से जैसे जैसे आप हायर फाइलम की तरफ आपको बढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि जो है ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे टिश्यू लेवल तक पहुंच रहे हैं, देन ऑर्गन लेवल तक पहुंच रहे हैं, देन ऑर्गन सिस्टम लेवल तक पहुंच रहे हैं, है ना. और आप ह्यूमन के केस में या मैमल्स के केस में देखेंगे कि दे आर हैविंग द सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर हैविंग द प्रॉपर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम,
क्योंकि बॉडी बड़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। अब उतनी सिंपल बॉडी नहीं है कि हर एक ही सेल जो है वो सारा काम कर सकती है, नहीं, एक प्रॉपर सिस्टम है उनके बॉडी में और उन सभी का कोऑर्डिनेशन है प्रॉपर। ठीक है, सो सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने होते हैं, चाहे वो सिंगल सेल का जो है वो ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। अगर हम इनके शेप और साइज की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं, अमीबा है, यहाँ पर न्यूरॉन सेल है, क्लेमाइडोमोनास है, यहाँ पर मैं वॉल्वॉक्स भी मैंने बनाया था, राइट। और आप देख सकते हैं कि इनमें कितना डिफरेंस है, इसका कोई शेप ही नहीं है ना। आप अमीबा का कोई शेप नहीं कह सकते कि इसका कोई शेप है, हमेशा चेंज होता रहता है। और उसके चेंज होने का कारण ये है क्योंकि वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जिससे कि उसको फूड को कैप्चर करना होता है, और फूड को कैप्चर करने के लिए उसके पास क्या है, स्यूडोपोडिया। सो स्यूडोपोडिया कहीं से भी वो ऐसे बढ़ाता है और फूड को कैप्चर कर लेता है ना। सो यहां पर इसका कोई भी शेप जो है वो नहीं आपको दिखेगा। अब वहीं पर न्यूरॉन सेल की बात करो, आपको इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा साइटोन पार्ट और दूसरा मिलेगा एक्सॉन पार्ट। ये इसके दो मुख्य पार्ट होते हैं। साइटोन से आप छोटे छोटे ऐसे ना ब्रांचिंग देख सकते हैं जिसके हम डेंड्राइट्स कहते हैं, और इनमें से कोई एक डेंड्राइट जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा जो है वो बड़ा होता है बाकी डेंड्राइट से, और जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। और बाद में आप इसको देख सकते हैं कि नर्व एंडिंग है। अब ये ऐसे क्यों है, ये भी तो ऐसे हो सकते थे अमीबा की तरह, लेकिन इनको एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है। इनको फंक्शन क्या परफॉर्म करना है, इनको जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक सेल से दूसरे सेल में भेजना है। तो यहां पर ये जो डेंड्राइट्स फैले हुए हैं इनके इलेक्ट्रिक सिग्नल को रिसीव करने का काम करते हैं, और एक्सॉन जो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आगे सेंड करने का काम करता है। तो ये जो इनका स्ट्रक्चर का जो ऑर्गेनाइजेशन है इतना पिक्यूलियर टाइप, ये इनके एक्टिविटीज और फंक्शन से रिलेटेड है। सेम आप यहां पर देख सकते हैं कि क्लेमाइडोमोनास जो है वो सिंगल सेल जो है वो क्लोरोफाइसी एल्गा है, और आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो है इसमें आपको यहां पर फ्लैजिला दो मिलते हैं जिससे कि ये लोकोमोशन करता है। उसी तरीके से वॉल्वॉक्स की कॉलोनी जितने भी सेल्स इस तरीके से होंगे उनके सबके पास दो दो जो है वो फ्लैजिला होते हैं, वो पूरी कॉलोनी को एक जगह से दूसरे जगह मूव कराने में हेल्प करते हैं। तो इनकी एक्टिविटीज, इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग इनका शेप का साइज होता है, ठीक है, और इन सेल का जो शेप होता है और इनका साइज होता है। अगर मैं ऑर्गेनिजम्स के सेल्स की बात करूं तो सेल्स बेसिकली दो तरीके के हो सकते हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे जो मोनेरा किंगडम आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा कि इसमें जो है वो प्रोकैरियोट्स आते हैं, जो कि इनमें कोई भी जो है न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। जो न्यूक्लियस का जो कंटेंट होता है वो सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में पूरे साइटोप्लाज्म में ही डिस्पर्स होता है। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आपको यहां पर जो है बैक्टीरिया के केस में या फिर प्रोकैरियोटिक सेल के केस में या मोनेरेंस के केस में, कुछ भी आप यहां पर कह सकते हैं, चाहे मोनेरा कहिए चाहे प्रोकैरियोटिक सेल कहिए, चाहे कोई एक सिंगल बैक्टीरिया का भी एग्जांपल लेके आप इसको बोल सकते हैं कि इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। वहीं आप देखेंगे कि अमीबा का एग्जांपल लीजिए, इसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आपको प्रॉपर दिखाई देगा, और उसका जो न्यूक्लियस का कंटेंट होगा वो इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। और इसके बहुत सारे जो है ऑर्गेनल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये है आपके दो तरीके के सेल्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। नेक्स्ट जो है, अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल कंटेन अ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अगर आप किसी भी एक यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल लीजिए तो आपको उसमें क्या देखने को मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और साइटोप्लाज्म भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो है यूकैरियोटिक सेल में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। प्लांट सेल की अगर आप बात करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जो है ना आपको सेल वॉल भी देखने को मिलेगा। ये प्लांट सेल का एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि उसके पास सेल वॉल भी होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल एंड फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ सेवरल मॉलिक्यूल्स। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं ना, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होती है
ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये कुछ ही चीजों को अंदर सेलेक्टिवली आने देगी और कुछ चीजों को बाहर जाने देगी, है ना। जैसे स्कूल है, स्कूल में जो है कोई भी बच्चा एंटर कर सकता है किसी स्कूल में, है ना, नहीं कर सकता। आपका स्कूल होगा तो आपके स्कूल का एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होगा, आप यूनिफॉर्म पहने रहेंगे तभी आप उस अपने स्कूल में जा सकते हैं, है ना। कोई भी बच्चा स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ है वो आपके स्कूल में जा सकता है, नहीं जा सकता। यानी कि आपके स्कूल में भी बच्चों को एक सेलेक्टिवली जो है वो परमिशन मिलता है ना। तो उसी तरीके से आप यहां पर समझिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है वो भी सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर आने देती है, ठीक है। और ये जो है अपने सेलेक्टिव चीजों को इसलिए आने देती है कि कोई भी चीज आकर सेल को जो है डिसरप्ट ना कर सके, ठीक है। चलिए इसके बाद हमको जानना है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है सेल वाले चैप्टर का, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। अब मैं आपको बस सिंपल ये चीज यहां पर बता रहा हूं क्योंकि ये समरी है, पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। ये चारों ऑर्गेनल्स को इन अ सिस्टम यानी कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखने का एक रीजन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, अगर हम आरईआर की बात करें तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोटीन सिंथेसिस होती है। आपको पता होगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसके ल्यूमेन में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में कोई प्रोटीन जो है वो सिंथेसिस होगी। राइबोसोम चिपके हुए हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। अब ये प्रोटीन जो बन गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बड़ी फंक्शनल फॉर्म में नहीं होगी, है ना। उसको फंक्शनल फॉर्म में बनने के लिए भेजा जाएगा मॉडिफिकेशन के लिए, पैकेजिंग के लिए, कहां पर? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। आप भी कोई गिफ्ट खरीदते हैं, गिफ्ट देने से पहले अपने फ्रेंड को उसको प्रॉपर पैकिंग करते हैं ना। सो वो पैकिंग जो की जाती है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में की जाती है, ठीक है। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ना कई बार क्या होते हैं कि लाइसोसोम बनाए जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे सिक्रीटरी सब्सटेंसेस भी जो होते हैं सेल के बाहर सिक्रीट करना है, उन सब का भी सिक्रीशन जो होता है वो इस गोल्जी बॉडी से होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, लाइसोसोम यानी कि लाइसोसोम में बहुत तरह के 100 से ज्यादा एंजाइम्स पाए जाते हैं। और ये लाइसोसोम का बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कोई भी जो वेस्ट मटेरियल आपके सेल के अंदर है इसको पकड़ेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। कोई ऑर्गेनल, सपोज कोई माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अब धीरे धीरे खराब हो रहा है, अब वो खराब होगा तो सेल में तो जो है आप समझ सकते हैं कि अगर कोई फ्रूट खराब है और फ्रूट की टोकरी में रखी हुई है तो बाकी फ्रूट्स को भी खराब कर सकता है, तो उसको वहां से हटाना बड़ा जरूरी होता है। उसी तरीके से जो ऑर्गेनल सेल के अंदर प्रेजेंट हैं वो अगर खराब हो रहे हैं तो उनको भी वहां से हटाना बड़ा जरूरी होता है। लाइसोसोम यहां आता है और उस अपने ही सेल के ऑर्गेनल्स को कैप्चर करता है और उसको धीरे धीरे डिग्रेड कर देता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, ये लाइसोसोम का काम है। अब इसी से जो है वो वैक्यूल्स भी बनाए जाते हैं। वैक्यूल्स एक ऐसा ऑर्गेनल है ना, जिसमें कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सब इसमें डाल दिया जाता है ना। जैसे हमारे घर में एक स्टोर रूम होता है, जो चीजें यूज के लायक नहीं है, कभी बहुत सालों में एक आध बार जरूरत पड़ती है, उसको हम उस रूम में रखते हैं, है ना। उसी तरीके से सेल के केस में वैक्यूल्स भी होते हैं, है ना। प्लांट के सेल में आप देखेंगे कि काफी बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इसका बहुत अच्छा रीजन ये है, अगर आप इसको समझिए कि प्लांट सेल में इतने बड़े वैक्यूल्स हैं जबकि एनिमल सेल में या तो बहुत छोटे होते हैं या तो नहीं होते हैं। क्यों? कोई बताएगा क्यों ऐसा होता है? प्लांट सेल के अंदर कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, तो प्लांट के केस में जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बनते हैं वो सब वैक्यूल्स में चले जाते हैं। एक्स्ट्रा वाटर है, वैक्यूल्स में डाल दो। कोई एक्स्ट्रा एंजाइम है, इसकी जरूरत अभी नहीं है, वैक्यूल्स में डाल दो। तो वैक्यूल्स वहां पर एक तरह का स्टोरिंग ऑर्गन की तरह काम कर रहा है। वेस्ट मटेरियल उसमें डालते जाते हैं सेल के जो है प्लांट सेल के अंदर। जबकि आप एनिमल्स के केस में देखेंगे, चाहे छोटा और ग्रेड का ऑर्गेनिज्म हो या हाई ग्रेड का ऑर्गेनिज्म हो, है ना, चाहे आप पोरीफेरा देखिए, चाहे आप प्लेटीहेल्मिन्थीज देखिए, चाहे आप जो है एनिलिडा का देखिए, चाहे आर्थ्रोपोडन्स को देखिए, सब में आपको प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलेगा।
ह्यूमंस में भी देखने को मिलेगा, मैमल्स में भी देखने को मिलेगा, है ना। और इसलिए वहां पर वैक्यूल्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल तो टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, सो यहां पर वैक्यूल्स की इसलिए बड़ी उपयोगिता है प्लांट सेल के केस में। ठीक है, सो ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आपको याद रखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ये चारों मिलकर बनाते हैं। ऑल द सेल्स ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ डिफरेंट बट स्पेसिफिक फंक्शन। हर ऑर्गेनल सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, क्लोरोप्लास्ट, इनका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन। तो जितने भी ऑर्गेनल्स इनमें होते हैं उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब जैसे नाम लिया क्लोरोप्लास्ट का, तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन करना, एनर्जी का प्रोडक्शन करना, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, so a typical eukaryotic cell consists of a cell membrane, nucleus and cytoplasm. So if we talk about a typical eukaryotic cell, any eukaryotic cell, you will see the three important things in that. The outermost membrane, that is called as cell membrane or plasma membrane, and in the center you can see the nucleus. Okay, you can see this nucleus in the center that contain the chromatin material at the interface, but at the time of division this chromatin material can be break down into a chromosome. So you can see the chromosome if you are watching under the microscope, the cell which is in the division phase or the M phase. Now you can see the cytoplasm, right? And if you are seeing this plant cell, then you will have an extra wall around the cell membrane that is called as cell wall. This is made up of cellulose, a type of carbohydrate. The plasma membrane is selective, permeable and facilitate the transport of several molecules. Yes, the plasma membrane shows the selectively permeability. What does this mean? So you are studying in a school and your school is having a particular uniform. Okay, so when you wear that uniform, then only you are allowed to enter inside your school, right? So in the same way, the molecules, selective molecules that can enter inside the cell, all molecules cannot enter inside the cell. Same way, you wear your school uniform and you enter inside your school. Now a boy which do not study in your school and is not wearing any uniform also, he cannot enter inside the school. Just understand in that way. Now they are having the endomembrane system as well. Now this endomembrane system include the endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome and vacuoles. Endoplasmic reticulum, you all know there are two types: rough endoplasmic reticulum RER and smooth endoplasmic reticulum SER. Now RER, why it is called rough? Because ribosomes are attached on the surface of ER and that gives the rough appearance. They do a very important function, that is the process of protein synthesis. Now inside the lumen of endoplasmic reticulum, the protein gets synthesized. Synthesized protein is not functional in the RER. It get modified when it is transported to the Golgi complex. There it get modified. It get modified because lot of modification, different ligands get attached to it. For example, glycoproteins, a protein which got synthesized in the ER, but a glycosyl moiety, okay, glycogen moiety or a glucose moiety get attached to it in Golgi complex. So this modification is occurring in the Golgi complex. The packaging of material also occurring in the Golgi complex. And this Golgi complex give right a lot of secretory vesicles, secretory substances that has to be secreted out. Okay, that is having a particular functions. So that is done by Golgi complex, secretory vesicles. Lysosomes are also formed by this Golgi complex. They are having more than 100 types of enzymes. Now this lysosomes perform a very important function. If any harmful substances comes inside the cell, lysosome capture it and destroy it. Sometimes their self organelles get damaged.
So at that time, what they do, they engulf that organelle, suppose mitochondria, and they destroy it. Now vacuoles. Another important organelle of this system is the vacuole. Vacuole is again a membrane bound organelle which is more prominent in the case of plant cell. You can see a large size of the vacuoles in the case of plant cell. Animal cell generally they are not present, and if they present also, their size is very small. The membrane of this vacuole is having a term that is called as tonoplast. These are the things that you must remember, tonoplast. Now in the case of plant cell, why they are so prominent? Because the plant cell do not have in fact the plant do not have any excretory system. So whatever the excretory system or excretory substance that gets synthesized in the metabolic activities, it gets stored in the vacuoles. Okay, whatever the extra substance the plant cell is having, it is transported to the vacuole. Store it. It is like a storeroom in your house. Whatever the waste material are there, or the article that you need hardly once in a year, you keep there. Okay. So in the same way, this vacuole perform the function. All the cells organelles perform the different but specific function. So every organelle is having a specific function, like mitochondria perform the cellular respiration, chloroplast do the process of photosynthesis, right? So every organelle is having its specific functions. Now, the centrosome and centriole form the basal body of the cilia and flagella that facilitate locomotion. So these are some of the organelles that are concerned for the locomotion. Okay, so centrosome is an organ, and the centriole are you can see that in the basal body of the cilia or flagella. So suppose this is a flagella. Okay, so its basal body, you can see this centrosome. Whether it is a cilia or flagella, you can see that. And it is also helping in the locomotion process. In animal cell, the centriole also form the spindle apparatus during the cell division. Now the centriole do a very important function at the time of cell division. So they form this like this ester fibers, and this is attached with the chromosomes like this. So if you remember this cell division chapter, right, this chromatid, it is separating from this side also and this side also. So one of the chromatid move to one pole and this chromatid moves to the another pole. So how this happening? Because this is the work of the spindle apparatus that is formed from the centrioles. Okay. Nucleus contains the nucleoli and the chromatin network. Now in the center of the cell, what you see? Nucleus. This is the nucleus, and it is having the chromatin network. At one particular place, you can see a dark round structure like this. So this is nucleoli. Nucleoli, a region where ribosomes are formed. It is actually present on this chromatin material. So where this nucleoli is present, that is the region of the chromatin which is concerned for the synthesis of ribosomes. And this nuclear membrane is having the nuclear pore also. So whatever this ribosomes get synthesized, it comes out from that nuclear pore region. And also this is DNA, that chromatin material or the chromosomes that is made up of DNA and histone protein. So the DNA at the time of transcription forms RNA. So that RNA also comes out from this nuclear pore. So this nuclear pore is having a very, very important function. So I'm talking about the nucleus. So just I explained this whole process. Okay. It does not only control the activities of the organelles but also plays a major role in heredity. So why we say that it also plays control the activities of different organelle? How it is controlling the activity of different organelle? So let us think about this. Protein synthesis, where does it take place? It takes place in the cytoplasm.
And for that we require RNA. We require ribosomes. Ribosomes are made up of RNA and protein, and it gets synthesized where? Inside the nucleus. mRNA, we required mRNA also. Where it gets synthesized? In the nucleus from the template of DNA. Now we require tRNA also. So tRNA, where get it synthesized? It's synthesized in the nucleus, right? So that is why our protein synthesis, which is taking place in the cytoplasm, but it is controlled from the nucleus, right? And it also having the major role in hereditary, that you all know how it know, because they are having the lot of genes that control the phenotypic and the genotypic. You all know that you have studied in the chapter heredity. ओके, सो सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल जो होता है वो आपके इसके दो इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर मिलेगी, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, जो कि आपके सीलिया और फ्लैजिला में ना बेसल बॉडी आपका जो बनता है उसमें ये जो है वो सेंट्रोसोम को आप देख सकते हैं, सेंट्रियोल्स को भी देख सकते हैं यहां पर, है ना। इसमें आपको इस तरीके का अरेंजमेंट मिलेगा, डबलेट्स के फॉर्म में आपको यहां पर 9 डबलेट्स मिलेंगे, ठीक है, और सेंटर में 2 मिलेगा सीलिया के केस में। In animal cells, centrioles also form the spindle apparatus during the cell division, और सेल डिवीजन के केस में आप देख सकते हैं कि स्पिंडल apparatus जो है वो किस तरीके से जो है ये सेंट्रियोल्स बनाने का काम करते हैं। ये सेंट्रियोल्स है, यही जो है वो स्पिंडल apparatus बनाते हैं और सेल को डिवाइड करने का काम करते हैं। सेल को डिवाइड करने के लिए इसके पहले जो है वो क्रोमोसोम्स का डिवीजन होना बहुत जरूरी है, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, है ना। न्यूक्लियस कंटेन द न्यूक्लियोलाई एंड द क्रोमेटीन नेटवर्क, तो आपको न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा क्रोमेटीन नेटवर्क दिखाई देता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, और साथ में आपको एक न्यूक्लियोलाई भी देखने को मिलता है जो कि आरएनए बनाने का काम होता है यहां पर। और साथ में आप यहां पर देख सकते हैं कि जो ये न्यूक्लियस होता है ये बहुत सारे ऑर्गेनल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। कैसे करता है? इसका एग्जाम्पल हम प्रोटीन सिंथेसिस से समझ सकते हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस कहां पर होती है? साइटोप्लाज्म में, है ना। लेकिन साइटोप्लाज्म में जो इसके लिए आवश्यक चीजें हैं जैसे कि राइबोसोम्स, एमआरएनए, टीआरएनए, ये कहां बन रहे हैं? ये बन रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, है ना। डीएनए अपने टेम्पलेट से एमआरएनए बनाता है और टीआरएनए भी बनाता है, बाद में इसकी प्रोसेसिंग हो जाती है तो वो टीआरएनए बन जाते हैं। और राइबोसोम्स भी जो बनते हैं उसमें आरआरएनए जो बनता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है। सो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हेरिडिटी आप जानते हैं कि जीन्स के द्वारा जो है वो कैरेक्टर्स एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन में जाते हैं, तो वो क्रोमेटीन मटेरियल के थ्रू ही जाते हैं, डीएनए के थ्रू ही जाते हैं, ठीक है। सो यहां पर कुछ ऑर्गेनल्स हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल द सेंटर ऑफ द सेल, इट कंटेन सेल डीएनए एंड इट इज इन्वॉल्व इन द जीन एक्सप्रेशन, सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो न्यूक्लियस जो है वो सेंटर ऑफ सेल में प्रेजेंट होता है, इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, ये जीन को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं, सेल के ग्रोथ करने का भी काम करते हैं और रिप्रोडक्शन प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं, है ना। तो अभी आपने सेल डिवीजन का हमने जिक्र किया था लास्ट स्लाइड में, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेल डिवीजन हो रही है, सेल फिर इसके बाद ग्रोथ करती है और फिर रिप्रोडक्शन प्रोसेस में भी जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वहां पर भी न्यूक्लियस का ही इन्वॉल्वमेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और इसमें जो है एनर्जी जो होती है एटीपी जो बनती है ना, ये आपके जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ही बनती है, जो कि एक सोर्स है केमिकल एनर्जी का। ओके, नेक्स्ट ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट, जो कि एक प्लांट सेल में आपको देखने को मिलता है या फिर एल्गल सेल में भी आप देख सकते हैं। ये ऑर्गेनल जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें जो है वो क्या प्रेजेंट है, जो है वो पिगमेंट्स प्रेजेंट है ना, क्लोरोफिल, और ये लाइट एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं और केमिकल एनर्जी को फिर बनाते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये फूड बनाने का प्रोसेस जो है वो क्लोरोप्लास्ट के थ्रू होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दो तरीके के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो क्लोरोप्लास्ट, यू ऑल नो दैट इट इज फाउंड इन द ग्रीन प्लांट एज वेल एज algal cell, right? And they do a process of photosynthesis. For photosynthesis they require chlorophyll.
okay, and the chlorophyll is present in the chloroplast. So they capture the light energy and convert the chemical energy into glucose. We have already discussed about the endoplasmic reticulum, that endoplasmic reticulum are the frame like you can say the ribbon like network that is attached with the nucleus, and these are of two types, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum are concerned for the protein synthesis, where smooth endoplasmic reticulum for the lipid synthesis. Detoxification is the whatever the poisonous substance that comes inside the cell, they detoxify it, okay, and also help in the metabolism of the cell. Golgi apparatus modifies, stores and the packaging proteins and lipids for the storage and the transport out of the cell. तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से गोल्जी apparatus जो है वो सब्सटेंस को मॉडिफाई करते हैं, पैकेज करते हैं प्रोटीन्स का, और फिर इसके कंसर्न ऑर्गन्स तक इसको ऑर्गेनल्स तक इसको भेजने का काम करते हैं. लाइसोसोम कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम टू ब्रेक डाउन एक्सेस ऑफ वॉर्न आउट सेल पार्ट. तो सेल में जो भी वॉर्न हो रहा है ना, टूट फूट हो रही है सेल्स के पार्ट्स की, उन सब को बाहर निकालने का काम जो है वो लाइसोसोम्स का होता है. और जो भी इन्वेडिंग वायरसेस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, उनको भी ये इनगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं. Ribosomes, the site of protein synthesis where the genetic information is translated into protein. और ribosomes जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं. तो जहां भी ये प्रेजेंट होते हैं, चाहे साइटोप्लाज्म में या RER से अटैच्ड होते हैं, ये वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं. Vacuoles, large vesicles found in the plant and the fungal cells. They store nutrient, water, waste products. Okay, that also we have already discussed. Okay, so all the plant cells and the fungal cells, they do have a large size of the vacuole that stores the waste material, the nutrients. Okay, so this is very, very important for the plant cell. Peroxisomes contain enzymes that remove the hydrogen atom from the various substrate and transfer them to oxygen, producing hydrogen peroxide as a byproduct. So these organelles, so the question can ask from this particular organelle, that hydrogen peroxide synthesis is concerned for which organelle of the cell? So that is peroxisomes, and they play a key role in lipid metabolism and also detoxifications. Last, the cytoskeleton, a network of fibers that organize the structures and activities in the cell, maintaining the cell shape, securing some organelles in the specific position. Okay, so they are the structures that helps in the activities like cell shape, securing some organelles. Okay, locomotion also. Okay, they are also helping in the locomotion. They are maintaining the shape of the cell also. So these are some of the important function of the cytoskeleton. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which of the following statement is about the inclusion bodies is incorrect? है ना, inclusion bodies के लिए यहाँ जो 4 स्टेटमेंट है उसमें कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? These are involved in ingestion of food particle. ये फूड पार्टिकल के इंजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. They lie free in the cytoplasm. ये साइटोप्लाज्म में फ्री ही यूं ही पड़े रहते हैं. These represent the reserve material in the cytoplasm. ये रिजर्व मटेरियल के फॉर्म में होते हैं साइटोप्लाज्म में. They are not bound to by any membrane. है ना. So which of the following statement about the inclusion bodies is incorrect? इनमें से कौन सा incorrect है? अच्छा, सुखमन ने कहा है कि रेड ब्लड सेल्स विदाउट न्यूक्लिएटेड एंड विद हीमोग्लोबिन. सर क्या इसका मतलब है कि फ्रॉग का आरबीसी डिवाइड करेगा? आरबीसी इसका डिवाइड नहीं करता है, इसका भी, और जो है वो ह्यूमन के केस में भी नहीं करता है. इनकी डेज जो होती है 120 डेज होती है. ठीक है, और ह्यूमन का रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता तो वो डिवाइड नहीं करता. नहीं करता है वो. देखिए, एक्चुअली में ह्यूमन के केस में जो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता उसका रीजन ये है कि ह्यूमन का जो बॉडी है बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, और ज्यादा मात्रा में उसको ऑक्सीजन चाहिए.
सो जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होगा ना, उतना ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगा। अब न्यूक्लियस वाले स्पेस जो होती है वो क्या होती है, वहां पर बिल्कुल जो है वो शुरुआत में तो रहता है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, और वहां पर भी ना बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन आ जाते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को वो कैरी कर सके, है ना। ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है। यहां पर उतना जो है कॉम्प्लेक्स बॉडी जो है वो फ्रॉग का ह्यूमन से अगर आप कंपेयर करिए तो नहीं है। सो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं इसके केस में, जिसमें कि जो न्यूक्लियस प्रेजेंट और एब्सेंट होने की बात है यहां पर। इस क्वेश्चन के केस में मुझे कुछ आंसर्स आए हैं। रुपिंदर ने कहा है ए, ठीक है, अश्मिता ने भी कहा है ए, महक बंसल ने कहा है ए, सुखमन ने भी कहा है। These are involved in ingestions of food particles, है ना। ये इनकरेक्ट है, तो यानी ये करेक्ट कौन कौन से हैं? दे लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, यस। जो इंक्लूजन बॉडीज होती है ये कहां प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं, यस, दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। एंड दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटीरियल इन द साइटोप्लाज्म। ये जो है ना रिजर्व मटीरियल्स हैं, जब जरूरत होगी हम इनको ले लेंगे फॉस्फेट के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ये इंक्लूजन बॉडीज है ना। और ये साइटोप्लाज्म में ऐसे प्रेजेंट होते हैं, जब इनको जरूरत होती है ये इनको ले सकते हैं। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इंक्लूजन बॉडीज जो होते हैं ना, इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो ऐसा ये मत समझ लीजिएगा कि इंक्लूजन बॉडीज का मतलब जो होता है कोई ऑर्गेनल है, नहीं नहीं नहीं, ये कोई ऑर्गेनल नहीं है ना। ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, फॉस्फेट प्रेजेंट है, तो ये तो जो है आप देख से लीजिए जिसकी सब्सटेंसेस हैं, कंपाउंड है, तो इसके चारों ओर ना कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स, ये रिजर्व फूड मटेरियल्स हैं, जब चाहिए जो है सेल के द्वारा वो उसको लिया जा सकता है, और ये साइटोप्लाज्म में फ्री प्रेजेंट है। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट है ना इंक्लूजन बॉडीज के लिए बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है। लेकिन दे आर इन्वॉल्व इन इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। फूड पार्टिकल्स के इंजेशन के लिए इनकी जरूरत नहीं है ना। सो ये जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो ए इनकरेक्ट है, और इसका एक्सप्लेनेशन देखिए यहां पे दिया है। इंक्लूजन बॉडीज आर न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक एग्रीगेट्स विच आर स्टेनेबल सब्सटेंस। आप इसको स्टेन कर सकते हैं, इसके जो कुछ केमिकल्स आते हैं जिनको आप स्टेन करके आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। यूजुअली प्रोटीन, ज्यादातर ये प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और ये प्रोटीन्स कैसे होते हैं कि वायरस आया, वायरस को सेल ने इनगल्फ किया, लाइसोसोम ने वायरस को डाइजेस्ट कर दिया। अब डाइजेस्ट होने के बाद जो इसका प्रोटीन वाला पार्ट है वो कहां प्रेजेंट होगा? वो उसी सेल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। So viral multiplication or the genetic disorder in the human beings, these bodies are either intracellular or extracellular abnormalities. They are specific to certain disease. अच्छा, ये inclusion bodies कुछ ऐसे होते हैं ना, कुछ disease भी cause कर जाते हैं, क्योंकि कई वायरस को जब डाइजेस्ट किया जाता है तो उससे रिलेटेड जो inclusion bodies होती हैं वो सेल में पड़ी रहती हैं, और वो जो है वो कोई ना कोई डिजीज कॉज करती है। इसका देखिए यहां पर एक डिजीज का जिक्र भी किया गया है, हेरिडिटरी इंक्लूजन बॉडी मायोपैथीज, है ना, HIBM, हेरिडिटरी इंक्लूजन बॉडीज मायोपैथीज आर अ रेयर ग्रुप ऑफ जेनेटिक मसल डिसऑर्डर। ये मसल से रिलेटेड डिसऑर्डर है ना। एज विथ इंडिविजुअल विथ हेरिडिटरी, ये H होना चाहिए, द मसल tissue is affected, individual contain numerous subcellular compartments called vacuoles. At the age of one set of these disorder is generally between the 20 to 40 years. तो वायरस कुछ आते हैं बॉडी में, और उनको जब डाइजेस्ट कर दिया जाता है तो उससे जो रिलेटेड जो प्रोटीन्स बची हुई है ना, जो इंक्लूजन बॉडीज बन रही हैं, वो जो है ना मसल्स में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देती हैं, और ये 20 से 40 के एज में ये चीज देखी जाती है। और ये जो है वो आपकी हेरिडिटरी इंक्लूजन मायोपैथी जो है इसका एक एग्जाम्पल है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following nucleic acid is present in an organism having 70S ribosomes only? क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। Which of the following nucleic acid is present in an organism
हैविंग 70s राइबोसोम ओनली। ऐसे ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लिक एसिड बताइए जिस ऑर्गेनल्स में हमें 70s टाइप ऑफ राइबोसोम देखने को मिलता है। ऑप्शन ए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है और साथ में हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए विथ प्रोटीन कोट, उसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है और प्रोटीन कोट है। सी, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए है ना, कोई प्रोटीन नहीं है। और डी जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मेरे पास एक आंसर भाई सबसे पहले आ गया स्माइल संधू का, सी ऑप्शन इनके हिसाब से करेक्ट है। ठीक है भाई, और लोग भी बताइए, और कोई बताएगा? चलिए मैं इसको जल्दी से डिस्कस करता हूं। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन पहले तो ये जान ले 70s राइबोसोम किस में पाया जाता है। 70s राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल यानी मोनेरन्स, ठीक है, उनमें पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती है सर्कुलर डीएनए के साथ, ये यूकैरियोटिक का फीचर है। यूकैरियोटिक सेल में ये देखने को मिलता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए विथ प्रोटीन कोट, ये हमें जो है प्रोटीन कोट तो नहीं मिलता है, प्रोटीन कोट से सराउंडेड नहीं होता है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर और नेकेड डीएनए, कोई प्रोटीन नहीं होती है। और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, ये ही करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती ही नहीं प्रोकैरियोटिक सेल में, है ना। सो सी इज द करेक्ट आंसर। सो सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, द ऑर्गेनिज्म विच हैव द राइबोसोम ऑफ 70s टाइप यानी कि प्रोकैरियोट सेल, द प्रोकैरियोट्स हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विच इज नॉट एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। इसमें मेम्ब्रेन में ये एनक्लोज्ड नहीं होती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल। हमारा प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो एक सेल है। कैसा सेल है? विदाउट न्यूक्लियस, अंडरगोइंग डिवीजन, विदाउट सेल वॉल, विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल भी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। कई बार इसमें बहुत कंफ्यूजन आपको देखने को मिल सकता है, कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आज यहां पर प्रोटोप्लास्ट का हम कॉन्सेप्ट समझ कर जाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट इसके आंसर्स आप जो है वो चैट बॉक्स में बताइए। स्माइल संधू ने कहा है सी, विदाउट सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट रुपिंदर कौर ने भी कहा है विदाउट सेल वॉल, सी। वेरी गुड, कॉन्सेप्ट सबके क्लियर हैं। ठीक है, विदाउट सेल वॉल ही इसका करेक्ट आंसर है। देखिए प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। प्रोटोप्लास्ट जो होता है, अगर प्लांट सेल है ना, तो प्लांट सेल में सेल वॉल के अलावा जो अंदर की चीज है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो अंदर की चीज है वो जो है वो आपका प्रोटोप्लास्ट है। एनिमल सेल में तो सेल मेम्ब्रेन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, सो विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये गलत है, इंक्लूडेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अंडरगोइंग डिवीजन, नो, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। विदाउट न्यूक्लियस, नहीं, न्यूक्लियस भी इसका पार्ट होता है। ठीक है, सो सेल वॉल लेकिन नहीं होता। So without cell wall is the correct answer. Cell wall is absent in protoplasm. हेंस्टीन ने 1880 में जो है वो प्रोटोप्लास्ट जो है वो टर्म को दिया था इन एक्सक्लूडिंग द सेल वॉल, सेल वॉल को छोड़कर। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? आपका साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा। और प्लांट सेल के केस में क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, वो जो है कहलाएगा प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के केस में कौन सा इंक्लूजन बॉडी नहीं पाया जाता? अभी हमने इंक्लूजन बॉडी समझ लिया कि क्या होते हैं, है ना। सो अब आप इसका आंसर बहुत इजीली बता सकते हैं। ए ऑप्शन है साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स, बी है ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, सी है पॉलीजोम्स और डी है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स।
सी पॉलीजोम स्माइल संधू ने बताया है। ओके, और कोई? सुखमन बटर ने भी बताया है सी, अश्मिता ने भी बताया है सी। गुड। सो देखिए ये सारे जो ग्रैन्यूल्स है ना, साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ये सब जो है इंक्लूजन बॉडीज हैं। पॉलीजोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स ऐसे जो होते हैं ना, मेम्ब्रेन जो है वो mRNA से अटैच्ड होते हैं, इनको हम पॉलीजोम्स कहते हैं। तो ये इंक्लूजन बॉडीज नहीं है, ये तो देखिए mRNA है, और ये जो है आप राइबोसोम्स जब इससे अटैच्ड हो जाते हैं ना, सो इस तरीके से पॉलीजोम्स हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सो ये जो है इंक्लूजन बॉडी नहीं है। करेक्ट आंसर इज सी पॉलीजोम्स। पॉलीजोम्स आर डिफाइंड एज अ क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू अ mRNA मॉलिक्यूल। ये करेक्ट आंसर है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल किस में एब्सेंट हमें देखने को मिलेगा? फ्यूनेरिया में, बी माइकोप्लाज्मा में, सी नॉस्टॉक में, या डी एस्परजिलस में? किस में सेल वॉल देखने को हमें नहीं मिलेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से अगर आप इसके ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और ये 2015 में ही पूछा है ना। बी माइकोप्लाज्मा स्माइल संधू ने कहा है। अगर एग्जाम्पल्स किस जो है वो किंगडम को बिलोंग करता है ना, अगर आप ये निकाल लेंगे तो आपको तुरंत इसका आंसर पता चल जाएगा। रिद्धि ने बोला है बी माइकोप्लाज्मा, एंड सेहज ने बोला है सी, अमीशा ने बी, अश्मिता ने बी। तो मेजर लोगों ने बी को ही ऑप्ट किया है ना, माइकोप्लाज्मा। देखिए फ्यूनेरिया जो है वो आपका मॉस है ना, ब्रायोफाइट्स। सो ये तो आपका यूकैरियोटिक सेल होगा इसमें, है ना, प्लांट सेल। सो इसमें सेल वॉल तो प्रेजेंट होगी। नॉस्टॉक ये जो है वो आपका साइनोबैक्टीरिया है, इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होगी। एस्परजिलस फंगस है, इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होगी, लेकिन सेल वॉल में काइटिन यहां पे पाया जाएगा। अब आते हैं माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा एक तरह का बैक्टीरिया है, लेकिन जिसके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता। पीपीएलओ ऑर्गेनिज्म भी यहां पे देख सकता था, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी दे सकता था। यहां पे जोकर की तरह बिहेव करता है क्योंकि इसका कोई शेप ही नहीं होता, सेल वॉल नहीं है ना कि उसको कोई शेप दे सके, इसलिए ये अपना शेप चेंज भी कर सकता है। ये है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, पीपीएलओ ऑर्गेनिज्म भी इसको बोलते हैं। सो माइकोप्लाज्मा इज द करेक्ट आंसर, और जो है माइकोप्लाज्मा लैक करता है सेल वॉल में, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम यहां पर अटेंड कर लेते हैं। विच स्ट्रक्चर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कौन करता है? एक तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया पाया नहीं जाता वहां पर, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो फंक्शन यूकैरियोटिक सेल में कर रहा है वहां पर कोई कर रहा होता है। आपको ऑप्शन में ये बताना है, तो ऑप्शंस आप देख लीजिए क्या क्या है। ए न्यूक्लियोइड, बी राइबोसोम्स, सी सेल वॉल, एंड डी मीसोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्माइल संधू ने कहा है मीसोसोम्स, सेहज ने कहा है डी, ओके दैट इज ऑल्सो मीसोसोम। अर्शदीप कौर डी। न्यूक्लियोइड क्या होता है? सर्कुलर डीएनए, है ना। प्लाज्मिड में जो है ये आपका सर्कुलर डीएनए यहां पर प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के केस में, या फिर आप मोनेरा भी कह सकते हैं, तो वो जो है न्यूक्लियोइड कहलाता है। राइबोसोम्स सेल में ऐसे पड़े होते हैं, 70s प्रोकैरियोट्स, 80s यूकैरियोट्स, है ना। ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? एटीपी सिंथेसिस करना, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये तो नहीं करते हैं। सेल वॉल ये भी नहीं करते हैं, ये भी एटीपी थोड़ी ना सिंथेसाइज करते। अब मीसोसोम देख लेते हैं क्या होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना बैक्टीरियल सेल की, वो कई जगह ना इन्वेजिनेट कर जाती है इस तरीके से। यस, सबके आंसर सही है भाई, मीसोसोम्स। सो जो इन्वेजिनेशन करती है, इन्वेजिनेट करने से क्या होता है, ये इसका सरफेस एरिया एक तो बढ़ जाता है,
प्लस इसके पास जो है ना वो एंजाइम्स पाए जाते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। अब यहां पर जो है वो रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन वाला जो है वो प्रोसेस यहां पर परफॉर्म कर सकता है और एटीपी की सिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, सो मीसोजोम जो है वो यहां पर जो है ये काम करता है। साथ साथ मीसोजोम जो है वो सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है कि जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड करती है ना तो उसमें भी मीसोजोम का फंक्शन रहता है। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है इसका, मीसोजोम्स। इन बैक्टीरिया बैसिलस सबटिलिस the plasma membrane from the certain invaginations or infoldings called mesosomes in the cytoplasm, and the mesosomes have various function, that is respiratory and secretory. ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपना ये जो है सेशन यहां पर एंड करेंगे और आप लोग खूब मन लगाकर जो है वो अभी अपने एनसीईआरटी को रिवाइज करिए और जितने पीवाईक्यूज हो सकते हैं उनको सॉल्व करिए, क्योंकि पीवाईक्यूज जितना करेंगे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं, है ना। सो क्वेश्चन इस समय खूब सारे क्वेश्चन जितना आप सॉल्व करेंगे आपका जो कॉन्सेप्ट जो है वो उतना क्लियर होता जाएगा। प्लस आपको ये भी पता चलेगा कि जो मैंने स्टडी की है अभी तक उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, सो रिवीजन ऑफ योर स्टडी, ठीक है, जो भी स्टडी की है अभी तक उसको रिवाइज करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा जो है वो पीवाईक्यूज के सॉल्व करिए। हमारे साइट पर जो है वो पीवाईक्यूज के जो है वो टेस्ट पेपर्स भी हैं, आप उनको भी डेली अटेम्प्ट करिए। ओके, चलिए अपना ध्यान रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।